Azza, where do you think that match was won and lost? Because it seemed that you were in control of it for most of it. Well, obviously, if I have to point out one single thing, I think the credit to Chris Wokes and Josh Butler. They just took the game on, and straight away after the fifth wicket gone, from the first ball they started playing shots, and it was one of the best partnerships in recent past, I would say in Test matches. We were right in control of the game. I think we were just one punch away from to finish the game off there. But then they just came and dominated us in that period. Somewhere around we were kind of unlucky, but in most part of their partnership, they were brilliant. Yes, Rory, you can ask a question. Daniel. Hi. Hi, Azhar. Commiserations. Do you think, what do you think you learned from the first time you captained a test match that went really close, and what lesson do you think you take into this as you sort of begin your tenure in captaincy, in terms of captaincy in test cricket? Well, I've played Test cricket for a long time now, and I know that the Test cricket is hard. It's never over until it's over. I think it's been shown again today that. But the good thing is that everyone was stuck to the task. Unfortunately, we've been outdone by a brilliant partnership. Yes, there's hindsight. You think a lot of things can be done, but I think when they came and played shots, almost especially Josh Butler came up and attacked the spinners. I think he's played sweep shots, reverse sweep, everything, and it worked for him. And unfortunately, that nothing worked at that moment for us. And sometimes, when you play innings like that, you need to be lucky, and I think luck was also favoring them. And I think sometimes you have to give credit to the opposition. Yes, Rory, you can ask a question. Okay, Saj from Park Passion. Yeah, Rory, you can ask, please. Yeah, Azhar, do you know why you felt the pitch stopped playing tricks? It seemed that when you got Ben Stokes out and when you got Ollie Pope out, it felt like the pitch was going to really play in your favour, but it quite a bit. I think mic on mute. I think I heard. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, I'm saying, do you have any idea about why you think the pitch stopped playing games? It seemed like when you got out Ben Stokes and when you got out Ollie Pope, the bounce was very hard to read, and it suddenly, as the day went on, that stopped happening. Yeah, I think one thing I would again say that they came up with a great intent. They knew that it's not going to be possible if we just keep batting the normal way. They just took the game on, and maybe when the ball got a little more softer, it stopped doing it. Especially for the fast bowler, it wasn't doing much. And Butler, when he plays against the spin, he can do a masterclass because he can play 360 degrees against the spinner. So it's hard to set a field against him. So you can't. It's hard to set an attacking field on him. So he really put pressure on us, and it worked for him. And unfortunately, we witnessed not unfortunately, but we've been outplayed by him in that period, especially. Yes, English last question, Sajid, please. Azhar, there was a lot of discussion regarding your starting 11. Traditionally, the plan has been 6 batsmen, 4 bowlers and a wicketkeeper. This time you went for 2 leg spinners. With the benefit of hindsight, would you think that was the right selection, picking 2 leg spinners and then not bowling Shadab Khan in the second innings very much? Look, first of all, we were quite clear to have a 5th bowling option, and Shadab is batting really well. Especially, we felt that
since PSL. I know it's T20. He grown as a batsman, and then he was playing really well in the nets and also the first class game and the 4-day game we played. Every time he went into the into bat, he was batting really nicely. And looking at the pitch here in Manchester, it was quite tired looking wicket, and we thought that if we bat well, if we bat first, we will we will have a Shadab as all rounder, and he can come handy as a leg spinner as well, as we've seen in the first inning, especially against the tail with his wrong one and all that. He can be very handy and finish the tail off very quickly. Obviously, Yasir was our front line spinner, and that's why he bowled the most overs. And today, if you ask that, he bowled less because we were, fast bowler was getting a little bit of support from the pitch because it was I've seen quite a ball jumped from the length, and they were bowling really well. So I thought we have one end with a fast bowler, and Yasir was bowling from the other end. And when it was working really nicely, and when he came into bowl, he been put under pressure straight away by Josh Butler and Chris Brooks. Okay, thank you. We will now take question in Urdu. Ji Shadway, please. अजहर, हमने देखा कि थर्ड डे पूरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने अच्छा किया, लेकिन थर्ड डे पोस्ट टी सेशन, टी से क्लोज ऑफ प्ले पे टी पे 20 पे एक आउट था और फिर 117 रन पर पाकिस्तान ने 7 विकेटें खोई, जिसमें असद शफीक का एक रन आउट भी था। लगता नहीं आपको कि पाकिस्तान वहां मैच हार गया? आई थिंक हारे वहां नहीं थे, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी कि इंग्लैंड को गेम से आउट कर देते उस वक्त। वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप आज के देखें टिल 1 आवर आफ्टर लंच कोई भी टोटल इतना जो है वो पहले चेज नहीं हुआ। इस स्टैट्स भी देख लें, कंडीशंस भी उस वक्त देख लें। हम हावी थे इंग्लैंड के ऊपर, 5 आउट कर लिए हुए थे हमने और 160 रन अभी हमारे पास थे। और जो बैटिंग उसके बाद आने वाली थी, मेरे ख्याल में हम बड़े श्योर थे कि अगर एक विकेट और गिरेगी तो हम मैच जो है वो आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आके हमारे ऊपर अटैक किया और वो जो है वो गेम हमारे से छीन के ले गए। और दूसरी साथ में ये बात भी है कि यस, हाइंडसाइट हम रिग्रेट जरूर करते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, पार्टनरशिप भी डेवलप हुई सेकंड इनिंग में, लेकिन उस पार्टनरशिप को कोई भी पार्टनरशिप 50 प्लस 50 प्लस की ना जा सके, जिसकी वजह से शायद हम 300 प्लस पे ना जा सके। जी शुक्र भाई। अस्सलाम वालेकुम अजहर। वालेकुम अस्सलाम। अजहर, जब हम आपकी कप्तानी का तजिया करते हैं तो ये 7वां टेस्ट मैच था जिसमें अनफॉर्चुनेटली 4 ऐसे हैं जो जिनमें पाकिस्तान आपकी कप्तानी में हारा है, और इन 7 मैचों में आपकी अपनी जो कारकर्दगी है सिर्फ 327 रन की है। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या जो बैटिंग का जो प्रेशर है उसकी और जो खराब फॉर्म जिस तरह का है उसकी वजह से आपकी जो कप्तानी के फैसले करने की जो सलाहियत है वो मुतासिर हो रही है, या आपकी जो कप्तानी जो आपकी है उससे आपकी जो बैटिंग है उसने उसको मुतासिर किया है? दोनों में क्या ऐसी चीज है कि जो मतलब दोनों चीजें सही नहीं हो पा रही? देखिए, 10 साल क्रिकेट खेलने के बाद मुझे इतना जरूर अब पता लग जाता है प्लेयर को कि किस टाइम पे आपने क्या चीज करनी है। ऑब्वियसली जब मैं बैटिंग करता हूँ तो मैं एज ए बैट्समैन सोचता हूँ सिर्फ, और चाहे फॉर्म है या नहीं है तो मैंने एज ए बैट्समैन ही सोचना है। और जब मैं कप्तानी कर रहा होता हूँ तो मैं अपनी बैटिंग का बिल्कुल नहीं सोचता। तो ऐसे ही आई थिंक एज ए कैप्टन आप चल सकते हैं, और मेरी कोशिश यही होती है जब मैं कप्तान हूँ, चाहे मैंने 0 किया है चाहे मैंने 100 किया है, मैं एक ही तरह कप्तानी करूंगा, क्योंकि वही फैसले मैंने लेने हैं। क्योंकि कप्तान की एक अलग जॉब होती है, बैटिंग अलग जॉब होती है। तो ऑब्वियसली एज ए कैप्टन यू वांट टू परफॉर्म, बट अगर नहीं भी किया तो आपने कप्तानी तो उसी तरह करनी है जैसे आपका माइंड आपको जो ऑब्वियसली आपने माइंड को ओपन रखना है, और जो बैटिंग को है वो आपने पीछे छोड़ देना। जी सोहेल इमरान। अजहर, ये जिस तरह अभी पहले भी बात हो रही थी सिलेक्शन के मैटर्स को लेके, आप अपनी अभी शुभाई ने भी पूछा, अपनी कप्तानी को लेकर सेटिस्फाइड हैं जो डिसीजन आपके ऊपर हो रहे हैं, या आप समझते हो कि आप एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके हो कि परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं हो रही, पाकिस्तान टीम भी हारी है, और दूसरा जो भी आपने थोड़ी देर पहले इंग्लिश क्वेश्चन में भी बताया था कि सिलेक्शन को किस तरह डिफाइन करेंगे कि हम हमेशा 6 बैट्समैनों के साथ जाते हैं लेकिन इस वक्त तो हम लोग नहीं गए उसके साथ?
देखिए डिफेंड नहीं करूंगा. आई थिंक इट वाज राइट सिलेक्शन स्ट्रेट अवे. आई थिंक टिल येस्टरडे इट वाज वर्किंग रियली नाइसली. ऑब्वियसली वी लॉस्ट द टेस्ट मैच, बट शादाब की कंट्रीब्यूशन पहली इनिंग्स में जिस तरीके से वो खेला वो बड़ी सिग्निफिकेंट थी. बड़ी टफ सिचुएशन में हम थे उस वक्त, और शान की और उसकी पार्टनरशिप ने हमें गेम में जो है वो ऊपर लेके आए हमें. और अब ऑब्वियसली आप देखेंगे हमेशा से हम 5वें बॉलर पे स्ट्रगल करते हैं. हारिस सोहेल थे. हारिस सोहेल हमें आप कुछ 8 से 10 ओवर करके देते थे. इसी तरह हमारे जो पिच नजर आ रहा था, पिच के अंदर हमें एक स्पिनिंग ऑलराउंडर हमें था कि हमारा फिट होता है, क्योंकि शादाब की बैटिंग की फॉर्म बहुत अच्छी थी. क्योंकि आपको गेज करना होता है कि आपने सीमिंग ऑलराउंडर खिलाना है या स्पिनिंग ऑलराउंडर खिलाना है. तो हम बड़े श्योर थे कि ये इस पिच पे अगर हम शादाब के साथ जाते हैं तो हमें विकेट्स भी दिला सकता है, स्पेशली अगेंस्ट टेलेंडर. और उसने पहली इनिंग में करके भी दिखाया और बैटिंग में भी करके दिखाया. अनफॉर्चुनेटली कल भी वो अच्छा खेल रहा था, लेकिन वो आउट हो गया. आज ये है कि ऑब्वियसली अंडर प्रेशर जब हम थे तो हमने अपने जो फ्रंट लाइन स्पिनर है यासिर पे ट्रस्ट किया और मेन फास्ट बॉलर्स पे ट्रस्ट किया, और हम सही जा रहे थे. अनफॉर्चुनेटली एक इनिंग ऐसी एक पार्टनरशिप लग गई जिसकी वजह से सारा गेम जो है वो टर्न अराउंड हो गया. लेकिन मोस्ट पार्ट एक कल का शाम का टी का सेशन के बाद जिसमें हमारी विकेट्स लूज हुई और ये जॉश बटलर और क्रिस वोक्स की जो बैटिंग है उससे हमारा जो है वो पूरा टेस्ट मैच टर्न अराउंड हो गया. लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव थे इस मैच में. शान मसूद की इनिंग थी, शादाब की भी बैटिंग थी फर्स्ट इनिंग में, जिस तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट उसने की. और आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट जरूर है कि हमारे ये हाथ में टेस्ट मैच था. हम लीड कर रहे थे टेस्ट मैच को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हार गए. लेकिन आई थिंक सिलेक्शन भी ठीक थी पिच को देखते हुए. और मूविंग फॉरवर्ड एज अ टेस्ट टीम वी नीड टू फाइंड समवन एट नंबर 7 हु इज ऑलराउंडर. और कोशिश ये करेंगे इसी तरह हमारे पास मीडियम पेसर ऑलराउंडर भी आए ताकि एक बैलेंस बने, साइड का ब्रिज बने बिटवीन बैटिंग एंड बॉलिंग. जी बागटे प्लीज. अजहर, मेरा सवाल आपसे ये था कि पाकिस्तानी टीम यूएई और रावलपिंडी और कराची की जो 2 टेस्ट मैच जीती है, इनसे हट के हम लगातार 7 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया में, 3 साउथ अफ्रीका में. तो क्या वजह है कि पाकिस्तानी टीम इन 2 मकामात से बाहर निकल कर हार रही है? उसकी कोई वजह आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा? क्या वजह है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड में नहीं जीत पा रहे हैं पिछले 7 टेस्ट मैचेस में? देखिए इंग्लैंड में तो हमारा रिकॉर्ड माशाल्लाह से बाकी किसी भी आउटसाइड इंग्लिश टीम के सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है हमारा. 50% विन रेशियो है हमारी, बहुत किसी भी टीम की नहीं है. और ये टेस्ट मैच भी हम जो है वो ऐसी पोजीशन में थे जो हमें जीतना चाहिए था. अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए. तो इंग्लैंड में हमेशा हम अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं. ऑब्वियसली एवरी टाइम देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी. इसीलिए मूविंग फॉरवर्ड अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में या बाहर की कंडीशन में जीतना है तो वी नीड टू फाइंड बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल. 4 बॉलर्स के साथ बहुत मुश्किल होता है. इंग्लैंड या किसी भी कंडीशन में जो बाहर की कंडीशंस हैं वहां जाके आप जो है वो टीम्स को राइट टोटल पे जहाँ पे आपको उनको आउट करना चाहिए करें, क्योंकि उनकी बैटिंग भी लंबी होती है और कंडीशंस जो होती हैं वो टफ होती है, बैटिंग के लिए आसान नहीं होती हैं एवरी टाइम. ऑस्ट्रेलिया में कह सकते हैं बहुत अच्छी विकेट्स होती हैं, लेकिन कहीं पे भी अगर आप लूज छोड़ते हैं बैटिंग को दूसरी टीम की तो हम वहाँ पे कॉस्ट हो सकता है. तो आई थिंक वी हैव टू फाइंड राइट बैलेंस टू विन आउटसाइड एशियन कंडीशंस, और उसी तरफ हम सोच रहे हैं. और इंग्लैंड में वैसे भी हमारी परफॉर्मेंस लास्ट 2 टूर हो गए वो बहुत अच्छी रही है. जी शुएब. अस्सलाम वालेकुम अजहर, बतौर कप्तान आप क्या समझते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है सोशल मीडिया पे देख लें आपकी कप्तानी को लेके, क्या समझते हैं? खिलाड़ी नाकाम हुए दूसरी बारी में, बैट्समैन और फिर बॉलर हमारे, या आप बतौर कप्तान नाकामी को कबूल करते हैं? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हम अच्छी पोजीशन में थे, मैच जीत सकते थे, अनफॉर्चुनेट हो गया. साथ ही आप जब कप्तान होते हैं 27 की औसत, इसी को कर रहा हूं, 27 की औसत सबने करने होते हैं यार. प्लीज शुएब यार, रजा भाई इतना इंटरप्ट ना करें. शुएब एक एक क्वेश्चन करें प्लीज, सबकी टर्न है यार. आप लिस्ट देखें प्लीज. आपने क्वेश्चन अगर आप प्लीज आंसर कर दो यार. देखें अगेन मैं कहूँगा कि कैप्टनसी के हवाले से ऐसी इजी हाइंडसाइट देखने में बड़ा आसान लगती हैं चीज़ें कि ये कप्तानी इस तरह होगी या किस तरह होगी. आई थिंक जब कोई दूसरी टीम में से कोई आके ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाता है तो आई थिंक क्रेडिट उनको भी देना चाहिए. गेम है इस तरह. पहली इनिंग में हम भी आगे लगे हुए थे, वहाँ पे हमारे शान मसूद की
जो है वो शादाब की पार्टनरशिप लगी. तो आई थिंक एवरी टाइम यू कांट ब्लेम द कैप्टनसी. लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस आई एम हियर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. कभी भी एज ए कैप्टन मैं पीछे नहीं हटूंगा. I think as a team we could not defend a total which we should have. थैंक यू. जी अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई. अच्छा, पहली इनिंग में जिस तरह परफॉर्मेंस थी बड़ी अच्छी जा रही थी और लड़कों ने जो है वो कोई शक नहीं कि जान मारी है और शिकस्त तो जरूर दो चार हुए, लेकिन आपकी कप्तानी पर जिस तरह रशीद भाई ने सवाल किया उसको मैं आगे लेके चलता हूँ कि शान मसूद और आप में कंपैरिजन किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर भी काफी तनकीद की जा रही है आपकी कप्तानी पर और आपकी परफॉर्मेंस पर. तो क्या अगर बोर्ड आपको ऑप्शन देता है कि शान मसूद के अंडर कैप्टनसी आप खेलें तो आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, या जिस तरह माजी में जो कप्तान थे उनकी कप्तानी छीनी जाती थी तो वो तनकीद करते थे? देखिए, मेरा फोकस इस सीरीज पे है. ठीक है, मेरा फोकस पे. सोशल मीडिया को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं. सोशल मीडिया को छोड़ दें आप. इस वक्त हम अपना एनालिसिस करेंगे खुद जो कहाँ पे हमसे गलतियां हुई. और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो हमेशा उसको रिप्रेजेंट करना हर बंदे को प्राइड होती है. कैप्टनसी कौन करता है कौन नहीं करता इज nothing we can control, but as far as now I'm focusing on the series, how we can win this. Okay, thank you very much. कल हमारा टेस्ट होगा, देन हम मूव करेंगे साउथहैम्पटन के लिए और इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस इन मिनट. थैंक यू वेरी मच.